It is our unit number 1, and the title of this unit is Introduction to Philosophy. And here we shall learn at the completion of this today's session. You people should be able to define philosophy, and you should able to explain or describe the scope of philosophy, and then you should be able to explain or discuss branches of philosophy, and then to analyze the relationship of education and philosophy, and then to evaluate the role of philosophy in education policy making and practices, and defining idealism, basically. So all these things we have to achieve, all these sort of objectives we have to achieve at the end of the instruction of today's lesson. So first of all, we see what is philosophy. As earlier I have inquired from you that what is philosophy, and some of you have given answer of this question. But here on the slide, as you can find, that the term philosophy has been derived from two Greek words, which is philos and sophia. Philos means love for, and sophia means the wisdom or knowledge. So love for wisdom or love for knowledge is the denotative meaning of the word or the term philosophy. ये बात मेरे ख्याल में आपको याद रह जाएगी. The denotative meaning of the term philosophy is love for wisdom, because this word philosophy has been derived from a Greek word, from the Greek words of philos and sophia, where philos stands for love for and sophia stands for wisdom. So love for wisdom or love for knowledge is called philosophy. So next we see it is also defined as a search for the wisdom of life. Search for the truth is also called philosophy. Search for the wisdom of life is also called philosophy. कि हम किस तरीके से ये जान जाए कि असल जो हमारी ज़िंदगी की असल हकीकत क्या है, इसका असल मकसद क्या है, इसमें सच्चाई क्या है. And it is a kind of attempt to understand the universe as a whole and its relation with a human being. हम इसके थ्रू बेटा यूनिवर्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसका रिलेशन इंसान के साथ क्या होता है. And then it is a kind of examination of our moral responsibility and our social obligations also. कि हर इंसान जो है, because we are social animals and we have our associations, we have our relations, and we have to live in the society, and we have to follow certain norms, traditions, values of the society, and the cultural aspects of society, and the laws of society. So we need to have, or we have to demonstrate the moral responsibility and the social obligations. के बारे में भी आपसे मैं बात भी कर रहा था कि हमने जो ग्रुप सुना है उसमें हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है. The way we perceive the world around us, and we think about that, and then it means there are certain questions that we need to answer, and we try to answer basically. And answer of those questions is related to our philosophy. So how we define what is important to us is also one of the way of philosophy guide us. So this is about what philosophy is and what philosophy do for us. And further we say it has different definitions by different authors and different philosophers. Philosophers basically is the person who performs the task of philosophization, or the person who can think thoroughly, deeply, and who can develop logic and reasoning and some kind of intellect. That is a philosopher. That is job of the philosopher. So here certain names are mentioned as Plato, Aristotle, and Herbert Spencer, and they have defined philosophy in their own words in different ways. Here we see the philosophy aims at knowledge of the internal nature of the things. तो प्लेटो का ये ख्याल था कि जो चीज़ें हैं उनके जो एक्चुअल या इंटरनल नेचर जो है उसको समझने का उसका जो इल्म है उसको हम बेटा फिलॉसफी कहेंगे. क्योंकि प्लेटो के ख्याल में ये जो नॉलेज है ये हमेशा एक जैसा रहता है, और ये तस्वुरात हमेशा एक जैसे रहते हैं, ये चेंज नहीं होते. तो प्लेटो जो है वो इसलिए कहता है कि फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेचर ऑफ द थिंग्स, कि चीज़ें जो है हमेशा एक जैसी रहती हैं, चेंज नहीं होती, और इसी तरह से हम अपनी लाइफ गुजारते हैं. उन चीज़ों को, चीज़ें, इंसान जो है उन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है. चीज़ें इंसानों पर डिपेंडेंट होती हैं, उनके ख्यालात इंसानों पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इंसान उन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं, उन चीज़ों से डिपेंडेंट है. इसलिए सारा जो नॉलेज है, ये इंटरनल नॉलेज है, हमेशा एक जैसा रहता है. और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फिलॉसफी इज अ साइंस which investigates the nature of being as it is in itself. तो बेटा जो प्लेटो है ये आइडियलिस्ट है बेसिकली,
और जबकि एरिस्टोटल जो है वो रियलिस्ट है, रियलिज्म का ताल्लुक है, स्कूल ऑफ थॉट से है। और जो एरिस्टोटल है वो शागिर्द है प्लेटो का। और प्लेटो ने सबसे पहले जो हमें फिलॉसफी दी, अगर हम फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे भी आइडियलिज्म के बारे में, तो उसने हमें इंट्रोड्यूस किया आइडियलिज्म के बारे में। और उसका जो सुकरात जो था उसका उस्ताद था प्लेटो का। बेसिकली इसकी जो बुनियाद थी वो सुकरात ने रखी थी आइडियलिज्म की, लेकिन इसको बाकायदा फॉर्म में या शेप में जो इसके एक स्ट्रक्चर जो बना है वो प्लेटो ने दिया। और इसी के जो स्टूडेंट है अरिस्टोटल उसके अगेंस्ट किया, और इसने उसके बिल्कुल उसके मुतजाद एक नई फिलॉसफी, अपोजिट फिलॉसफी जो है जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, वो उसने प्रपोज की। और उसको वो प्रोपोनेंट बना उसका। और इसमें हम देख सकते हैं फिलॉसफी इज साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। तो जो अरिस्टोटल है वो ये कहता है कि दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो रियल हैं, और जो जैसी है वैसी ही है और वैसी रहती हैं। तो ये हकीकत में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जबकि प्लेटो उसके अगेंस्ट जाता है। प्लेटो इससे पहले कहता है कि चीज़ें जो हैं इसका नॉलेज एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो ये कहता है फिलॉसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। बेसिकली अगर ये देखा जाए इसका एस्पेक्ट फिलॉसफी का, तो फिलॉसफी को कहा जाता है इट इज़ द मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बेटा बता दूँ कि जो जितनी भी साइंसेज हैं, चाहे वो जितने भी डिसिप्लिन इवॉल्व हुए हैं, उसमें बेटा हमने उसको कुछ कैटेगराइज किया है। जैसे कि आपको पता होगा जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो आपको पता था आपकी फैकल्टी कौन सी है। आपकी फैकल्टी ऑफ साइंस है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, या इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, या फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, या फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, या फर्दर उसकी कोई फर्दर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग हो सकती है। तो आप देखते हैं कि आप एक बड़ी डोमेन से आपका ताल्लुक होता है, और उसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, सब डोमेन्स होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब साइंस के अंदर बहुत सारी डोमेन्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी, जोलॉजी, और इसके अलावा बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं फील्ड के। अभी तो जैसे ये माइक्रोबायोलॉजी आ गई है, और फर्दर इसके अंदर बहुत सारी नई शाखें आ रही हैं, फूड साइंस आ रही है, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स में देख रहा हूँ। इवन ये फार्मेसी है, और मेडिकल साइंसेज इसके कंपोनेंट के तौर पर देखा जा सकता है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, और इसके अलावा बहुत कुछ आ रहा है जो कि ये साइंस में विद एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज जो है ना, वो नई नई ब्रांचेस और नए नए फील्ड्स जो है ना इवॉल्व हो रहे हैं, और नई नई जो एक्सपर्टीज हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, अवॉल्व हो रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंसर की। वो ये कहता है कि एवरीथिंग जो है उसको हम देख सकते हैं एज अ यूनिवर्सल साइंस, और इसको बेटा हम कहते हैं फिलॉसफी। क्योंकि फिलॉसफी हर चीज़ की बेसिक है, हर चीज़ की बेस है। और आप अगर देखें, आप जैसे अभी आप लोगों ने एमफिल किया है, तो यू पीपल आर मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ये नहीं है कि आप किसी और चीज़ में एमफिल का मतलब कुछ और है। यू आर मास्टर ऑफ फिलॉसफी। मैंने भी एमफिल किया हुआ है, और अभी मेरी पीएचडी है, तो मैं यानी ये पीएचडी में मैं फिलॉसफी का डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है जब मतलब पर्सन पीएचडी करता है। तो हम पीएचडी करने का जो हाईएस्ट डिग्री होती है किसी भी फील्ड के अंदर, वो पीएचडी बेटा होती है। बाकी तो पोस्ट डॉक तो डिग्री नहीं होती, वो जस्ट एक स्पेशलाइजेशन के लिए थोड़ा सा आपने करनी होती है, और छोटा सा काम करना होता है। तो जो हाईएस्ट रैंक ऑफ डिग्री है दुनिया के अंदर जो नॉलेज पोजीशन की, वो बेटा पीएचडी है, या उससे नीचे एमफिल है। तो वो भी हम इसको भी हम फिलॉसफी के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इट मीन्स कि फिलॉसफी जो है वो रूट है हर चीज़ का। अगर आप असल में इसको थोड़ी हिस्ट्री देखें, तो आपको पता चलता है कि ये जो वर्ड साइंस है, इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। बहुत सारे ऐसे जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, सोशल साइंस और दिस एंड दैट, ये वर्ड बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करते बहुत सेंचुरी कुछ सेंचुरी पहले। जैसे आप 500-600 साल पीछे चले जाएं, तो आपको कोई बंदा साइंटिस्ट नजर नहीं आता। देयर इज नो वन पर्सन हु इज क्लेमिंग दैट आई एम अ साइंटिस्ट। आज तो आप कहते हैं मैं फिजिक्स, मैं फिजिक्स से हूँ, मैं केमिस्ट्री से हूँ, मैं केमिस्ट हूँ, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं जो है ना जोलॉजिस्ट हूँ। तो आज से जिस कुछ 100 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो इंसान कुछ नहीं थे। वो अगर कुछ कहते थे तो खुद को स्टूडेंट यानी वो मानते थे, या थोड़ा सा वो स्कॉलर कहते थे, या वो फिलोसफर्स थे। ठीक है। तो इवन जो आपका टोटल सोसाइटी थी, वो भी ऐसी थी जिसमें जो साइंटिफिक एटीट्यूड ही नहीं था। अब देखें, अब आज हम देखें अभी भी लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कितना है, उसमें कितने लोग साइंस से ताल्लुक रखते हैं, साइंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज से कुछ 100 साल पहले क्या हमारे हालात होंगे, और जबकि उस वक्त साइंस का कुछ जो नॉलेज था वो उस तरह से टीच भी नहीं होता था, लेबॉर्ट्रीज भी नहीं थी, और एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं थे। बल्कि अगर हम कुछ 100 साल पहले 17वीं सदी में पीछे चले जाएं, तो आपको ये ताज्जुब होगा कि उस वक्त बेटा ना तो कोई आर्टिकल्स होते थे, ना कोई जर्नल्स होते थे, ना कोई कॉन्फ्रेंसेज होती थी,
ना कोई इस तरह से बुक्स लिखी जाती थी, ना पेपर पेंसिल का ट्रेंड था। तो ये प्रिंट आया है शायद 18वीं सदी में, शायद ये प्रिंट आया है। उसके बाद से पब्लिकेशन का काम शुरू हुआ है। उससे पहले तो हाथ से किताबें लिखी जाती थी, कुछ नमूने तैयार होते थे। तो बहरहाल मुसलमान साइंसदानों ने या जितनी भी कौमें हैं उन सब लोगों ने इस पर कंट्रीब्यूट किया है, और ये कलेक्टिव नॉलेज है जो साइंस है बेसिकली। लेकिन साइंस का जो प्रिमिटिव बिटर नाम है वो फिलॉसफी ही है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि साइंस क्या है। तो एनी हाउ ये और कंसेप्ट है कि साइंस के वर्क को लोग मैजिशियन भी कहते थे, जो साइंटिस्ट थे उनको मैजिशियन भी कहा जाता था। ये सारी हिस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। हमने जब PhD कर रहे थे तो ये सारी फिलोसफीज जो हैं उसके बारे में हमने डिटेल में ये सारी स्टोरीज पढ़ी हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज F. कैनल, philosophy is the attempt to the find out the way about everything, the universe, about the whole of the reality। यानी अगर हम रियलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ये ट्रूथ अबाउट द रियलिटी जो है अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसको हम फिलोसफी कहते हैं। और कांट कहता है फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। कांट चूंकि साइकोलॉजिस्ट है, तो वो जो कॉग्निशन है, आपके जो सोचने का अमल है, उसको जो क्रिटिसाइज करने का प्रोसेस है, उसको वो फिलोसफी करार देता है, और उस फिलोसफी को साइंस के तौर पर डिफाइन करते हैं। सो फिलोसफी इज कंसिडर्ड टू बी द साइंस ऑफ ऑल द साइंसेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो रूट्स हैं हर सब्जेक्ट की, हर फील्ड की, वो फिलोसफी में है। और इसी एक्सपेंशन के बेस पे ये फर्दर आगे डोमेन्स बनती गई हैं नॉलेज की, और ये चीज़ें डिस्कवर होती गई हैं। अगर हम इसको रिलेट करें बेटा थोड़ा सा एजुकेशन के साथ, तो एजुकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो एजुकेशन इटसेल्फ हैज़ बीन, द टर्म एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुकेयर, दैट मीन्स टू ब्रिंग अप। तो यानी एजुकेशन का जो बेसिक रूट है वो एक लैटिन टर्म है जिसको हम एजुकेयर कहते हैं, और इसका मतलब बेटा परवरिश पाना होता है, ब्रिंग अप होता है। या एजुसर है, और एजुसर का मतलब ड्रा आउट होता है कि आप छुपी हुई चीज़ों को, सलाहियतों को बाहर लेके आते हैं। एंड एजुकेशन मीनिंग एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। और सिंपली हम ये कह देते हैं कि एजुकेशन को हम टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कह सकते हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग कह सकते हैं। अच्छा, इसमें अरिस्टोटल जो है वो कहता है एजुकेशन द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अरिस्टोटल का ये ख्याल है कि हम एजुकेशन को जब डिफाइन करते हैं तो इसका मकसद ये है कि हम एक ऐसा साउंड माइंड जो है उसको क्रिएट करें जिसके अंदर जो कि एक साउंड बॉडी के अंदर मौजूद हो। यानी वो कहता है जो आपकी जिस्मानी सेहत है वो भी ज़रूरी है, और जो आपकी दिमाग की जो डेवलपमेंट है उसकी जो सेहत है वो भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी जिस्म की ग़िज़ा और दिमाग की ग़िज़ा दोनों ज़रूरी हैं। और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स एज वाइसरेंट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द सोसाइटी ऑन अर्थ। तो बेसिकली अल्लाह ने हमें बेटा अपना खलीफा बना के भेजा है, और बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव इन दैट कि हम अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के नायब हैं। और इसलिए तमाम मखलूक़ात से मैं फिर वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, तमाम मखलूक़ात से हम अफजल हैं, चूँकि हम अल्लाह के नायब हैं, और अल्लाह की कोई और मखलूक नायब नहीं है। और जितनी जो सलाहियत अल्लाह ने हमें, जिन सलाहियतों से नवाजा है और जिन पोटेंशियल से अल्लाह ने हमें नवाजा इंसानों को, अल्लाह ने और किसी मखलूक को ये पोटेंशियल नहीं दी। अल्लाह ने हमें हदायत दी, अल्लाह हमसे हम कलाम हुआ, अल्लाह ने हमें जो है कुरान और बाकी जो जितने भी अम्बिया इकराम हैं, रसूल हैं, उनके थ्रू अपने पैगाम इंसानों तक पहुँचाया, इंसानों को मोतबर किया तमाम मखलूक़ात में। तो अल्लाह के बहुत सारे एहसानात हैं हमारी ज़िंदगियों में, हम बेसिकली उसको कंसीडर नहीं करते, ना उसका शुक्र अदा कर सकते हैं, ना करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने बेटा हमें अपना नायब बना के भेजा, और ये नायब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि हम में से हर कोई है। आप, मैं और हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, और उनकी नस्लें और हमारी नस्लें, और हमसे बड़े और उनके बड़े, और ये जितने भी हमारे बुजुर्गवार गुजरे बेटा, सब अल्लाह के नायब थे, सब अल्लाह के खलीफा थे। और अल्लाह ने ये इज़्ज़त आदम को बख्शिया और आदम की औलाद को बख्शिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आदम की औलाद में से हैं। तो इसलिए बेटा मैंने आप सबसे कहा कि हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जितने मर्जी अमीर हो जाएं, नॉलेज में जितने बड़े मर्जी हो जाएं, अल्लाह सबको दे, नॉलेज दे, ताकत दे, पावर दे, स्टेटस दे। लेकिन इसके बावजूद हमने अल्लाह को नहीं भूलना, उसके रसूल के अहकामात को नहीं भूलना, और हमने सब मुसलमानों की मदद करनी है, उनके लिए अच्छा बनना है। बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, अल्लाह ने हमें जो है वो अपना वाइसरेंट, अपना नायब बना के भेजा है, ताकि हम उसके बनाई हुई चीज़ों को, फिर बारहा हमें कहा गया है कि हम एक्सप्लोर करें जो भी इस जहान में और इस मकाम में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें और उस पर गौर व फिक्र करें। तो इसमें बेटा अगला जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन।
और इसमें मैं क्या आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फिलॉसफी की डेनोटेटिव मीनिंग है दैट इज लव फॉर विजडम और लव फॉर नॉलेज, उसको आपने नहीं भूलना। दूसरा जो है वो लव इट्स अ काइंड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ। और ये जो भी दो तीन डेफिनेशन मैंने आपको फिलॉसफी की बताई हैं, कोई दो तीन जो डेफिनेशंस हैं वो लाजमी याद करनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हम फिलॉसफी एजुकेशन की बात करें तो बेटा एजुकेशन की तमाम चीज़ें जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ फिलॉसफी ही ड्राइव की जाती हैं। चाहे हमारे एम्स हों, गोल्स हों, मेथडोलॉजीज हों, असेसमेंट के मेथड्स हों, और हमारा रिव्यू मैकेनिज्म हो, जो कुछ भी है वो बेटा फिलॉसफी इसमें स्टूडेंट फैसिलिटेशन है, अपना जो टीचर है उसका क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें बेटा डिटरमाइन करती हैं डिफरेंट फिलॉसफीज। और हमें पता चलेगा कि हम किस हद तक इन फिलॉसफीज के मुताबिक चीज़ें अपनाते हैं, जो सोचते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और दूसरों की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और हमें ये कंपैरिजन करने का भी मौका मिलेगा कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है या हमसे बेहतर सोचा जा रहा है, और हमें उनकी तरह सोचने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें फिलॉसफी जो है हमें इन चीज़ों को सोचने पर मजबूर करती है। तो एजुकेशन फिलॉसफी का ताल्लुक बेटा जहाँ तक है, फिलॉसफी एजुकेशन इज कंसर्न विद द एम ऑफ एजुकेशन एंड द बेसिक फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये डेफिनेशन भी है इसकी एजुकेशन फिलॉसफी की, कि जब हम बात करते हैं फिलॉसफी एजुकेशन की, एजुकेशन फिलॉसफी की, इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड द बेसिक फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो जो भी हमारे फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना इसकी मदद से किया जाता है। इट मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू सॉल्व वेरियस एजुकेशन इश्यूज। ये मेरी सबसे पसंदीदा डेफिनेशन होती है, क्योंकि ये हर जगह फिट आ जाती है। अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी को डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ psychological principles and rules in the field of education to solve various education issues or problems is called education psychology। तो ये बेटा फिलॉसफी को भी उन्होंने ऐसी डेफिनेशन दी हुई है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे फिट आ जाती है कि फिलॉसफी के नॉलेज को जब हम अप्लाई करेंगे एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, सो इट बिकम्स एजुकेशन फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। और इनका आपस में बेटा गहरा ताल्लुक है, इसको भी हम देखेंगे। और होपफुली व्हाट आई एम sharing with you, you are understanding at the moment. Okay, so there is a relation between the education and the philosophy because जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे एम्स और हमारे मेथोडोलॉजीज और हमारा करिकुलम और जो हमारे फैसिलिटेशंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, सब जो है वो हमें फिलॉसफी गाइड करती है कि हम मुख्तलिफ जो फिलॉसफीज हैं वो किस तरह से रिक्वायर करती हैं टीचर का रोल, स्कूल का रोल, और फिर करिकुलम का रोल टू एलिमिनेट द चाइल्ड, उसको कैसे हमने उनका जो जेन उनको हमने मुनव्वर करना है रोशनी से, उनकी रोशनी से। तो इसमें बेटा वाई टू एजुकेट जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है, एम है, वो भी हमें फिलॉसफी बताती हैं। और होम टू एजुकेट किसको करना है, चाइल्ड को, और उसकी क्या ज़रूरियात हैं और उसको कैसे डील करना है, ये भी हमें फिलॉसफी गाइड करती हैं। देन हु टू एजुकेट यानी किसने करना है, टीचर, और टीचर का क्या रोल होगा, ये भी हमें फिलॉसफी एजुकेट करती है। एंड व्हाट टू एजुकेट, और फिर क्या पढ़ाना है, दैट इज द करिकुलम और द सिलेबस, वो भी हमें फिलॉसफी बताती है कि हमारा करिकुलम कैसा होगा। एंड हाउ टू एजुकेट, और फिर उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, टेक्निक्स है टीचिंग, वो क्या होंगी, ये भी हमें फिलॉसफी गाइड करती है। So it means that there is a strong relationship between education and philosophy basically serve the education, and education basically serve the purpose of philosophy. Okay, तो अगर हम इसमें नेक्स्ट मूव करें, so now we see what is the scope of philosophy. Here we see that field of philosophical sciences जो है, the scope of philosophy include different philosophical sciences such as metaphysics, epistemology, logic, philosophy of science, axiology, aesthetics, philosophy of religion, philosophy of education, philosophy of history। तो बेटा ये तमाम देखें, इसमें वो तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं, लॉजिक है, और आपकी एथिक्स हैं, जियोलॉजी है, आपके एस्थेटिक्स है, आपकी रिलीजन है, हिस्ट्री है, ये सारा कुछ बेटा आपके इसको फील्ड ऑफ फिलोसफिकल साइंसेस कहा जाता है बेसिकली। तो कई बार जी, तो फील्ड ऑफ फिलोसफी एज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस, ओके, उनके एग्जिस्ट करती हैं फिलोसफी के स्कोप के अंदर जितनी भी हमारी ये सारी ब्रांचेस हैं। और फील्ड ऑफ फिलोसफी एज ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंस, philosophy is a science of sciences and mother of all sciences, as earlier I have said. And its scope includes the criticism and synthesis of the hypothesis and conclusion of physics, physical and social sciences.
तो हम जितनी भी रिसर्चेस करते हैं उसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं, प्रोपोजल बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बेटा हमें फिलॉसफी ही समझाती है। और बेसिकली ये जो हम बातें कर रहे होते हैं, जो हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, ये फिलोसफिकेशन का ही प्रोसेस होता है कि हम राइट वे में, राइट डायमेंशन में मफरूज़ात बनाते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या मुमकिनात हो सकते हैं, क्या चीज़ें जिनको हम टेस्ट करें और कैसे हम कंक्लूजन की तरफ मूव करें। तो इसमें फिलोसफी बेटा हमें गाइड करती है। तो नेक्स्ट वी सी subject matter of philosophy as what it includes, the scope of philosophy, clarifies its subject matter. Its subject matter includes conclusion and postulates of the physical and social sciences besides their general problems. तो बेसिकली जितने भी फील्ड्स हैं जिसका भी हम तस्करा कर रहे थे, उसमें जिन चीज़ों को हम रिसर्च के तौर पे लेते हैं और उसके बारे में हम सोचते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, उसके बारे में पोस्टुलेट्स बनाते हैं और प्रोपोजिशंस बनाते हैं, तो ये सारा बेटा हमें ये फिलॉसफी का हिस्सा है, फिलॉसफी का प्रोसेस है। और it helps us to understand the nature of universe and the standard of justice and conduct of life, why it is important, and validity of knowledge, which knowledge is said to be valid. कि देखें मतलब मैं अगर कोई बात फिजिक्स के बारे में, कोई थ्योरी के बारे में बात लिखता हूँ, तो क्या मेरी लिखी हुई बात आप ऑथेंटिक समझ सकते हैं? या मैं केमिस्ट्री में कोई बात लिखता हूँ, क्या मेरी बात आप ऑथेंटिक समझ सकते हैं? इवन अगर मैं एजुकेशन में ही कोई बात लिखता हूँ, क्या मेरी वो बात आप ऑथेंटिक समझ सकते हैं? उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या उसके इंडिकेटर्स होंगे, किन क्या उसका क्राइटेरिया होगा? तो ये बेटा ये जो नॉलेज है, नॉलेज कंट्रीब्यूशन और नॉलेज एक्सपोजर, इट्स नॉट अ इजी जॉब। इसमें आपको अपना नाम पैदा करने के लिए या अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए या उस नॉलेज को कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको वो तमाम पैरामीटर्स जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं, उनको उन सबको पूरा करना होता है। फिर आपकी थ्योरी या आपकी बात जो है ना, उसको तस्लीम किया जाता है और उसको आगे कोट किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें से हम गुजरे होते हैं अपनी अपनी शनाख्त और अपनी बात मनवाने के लिए या बनाने के लिए। और इट इज़ अ कंक्रीट एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग। और फिर हम रीजनिंग के बगैर हम कुछ नहीं बेटा। रीजनिंग के साथ हमने जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी हमारे लॉज हैं, जितने भी हमारे सॉर्ट ऑफ जो भी थिंक हम कर रहे होते हैं, उसमें रीजनिंग इसकी बुनियाद होती है। एंड द क्राइटेरिया ब्यूटी एस्थेटिक्स जो है, ये भी चूँकि फिलॉसफी का ही एक एरिया है, तो ये भी हमें ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को खूबसूरत कहेंगे और किस चीज़ को बदसूरत कहेंगे, या किस चीज़ को कम खूबसूरत कहेंगे, और उसका क्राइटेरिया क्या होगा। एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द थॉट्स, और जो सिर्फ लैंग्वेज है उसका थॉट्स से क्या रिलेशन है। तो इस चीज़ को भी हम स्टडी करते हैं एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। तो ये सारी चीज़ें फिलॉसफी का हिस्सा हैं। मैंने इसलिए कहा है कि जितने भी फील्ड्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फिलॉसफी के अंडर बेटा काम कर रहे होते हैं, या फिलॉसफी के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, या फिलॉसफी उसमें हमें एप्लीकेशन नज़र आती है। ये और बात है, चूंकि हमने पहले फिलॉसफी नहीं स्टडी की तो हमें वो पिक्चर नज़र नहीं आती। तो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। तो here we see, so now we are seeing branches of philosophy, and the first branch is the metaphysics. Metaphysics, as we see, is an attempt to determine what is real. तो बेटा कोई भी चीज़ को जो रियलिटी, स्टडी ऑफ रियलिटी है, उसको बेटा मेटाफिजिक्स कहते हैं। इसको समटाइम हम ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं। और ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस और स्टडी ऑफ रियलिटी, इसको बेटा हम ऑन्टोलॉजी का नाम देते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं इसके बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं। बेसिकली जो फिलॉसफी है ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को राइज भी करते हैं और उसका आंसर देने की भी कोशिश करते हैं। और ये नेचुरल है सबके लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस नेचुरल और यानी मेरे समेत हर कोई इसको सोचता है। और लेकिन इसमें भी एक मसला ये है कि कुछ लोग इसको सोचने के बाद राय रास्त पे आ जाते हैं, कुछ लोग भटक भी जाते हैं। क्योंकि जब हम बहुत डीप चले जाते हैं, डीपली फलसफे कर रहे होते हैं, तो हम हदायत से दूर भी हो जाते हैं, समटाइम हदायत के बहुत करीब भी चले जाते हैं। और जो लोग अल्लाह और अल्लाह की ज़ात को समझ जाते हैं, वो बेटा इसी इन्हीं क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन के सर्च में निकले होते हैं और इनकी तलाश में वो अल्लाह तक पहुँच जाते हैं और उसकी ज़ात को बहर को समझ जाते हैं। तो उसकी फिर तबाह में लग जाते हैं, फिर उसकी उसकी जो है ना वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ये एक और डिस्कशन है। बहरहाल यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि ये जो हमारी ज़िंदगी है इसका क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है इसका, ये क्यों है, वाई वी आर लिविंग, हम क्यों जिंदा हैं। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हम में से अक्सर
कोई भी सोच सकता है, बल्कि बहुत सारे इंसान सोच रहे होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी में लोग सोचते हैं कि भाई मेरी मकसद क्या है मेरी ज़िंदगी का। क्या मेरा मकसद ज़िंदगी का ये है कि मैंने एमएससी करनी है, मैंने बीएस करना है, मैंने कोई नौकरी करनी है, ये मकसद है मेरा कोई। और मैंने जो है कुछ पैसे कमाने हैं, मैंने शादी करनी है, मेरे बच्चे होंगे, मैंने उनको बड़ा करना है, बस यही कोई मकसद है। ये इससे कोई बड़ा मकसद भी है हमारी लाइफ का, जिसके लिए हमें यहाँ दुनिया के अंदर भेजा गया है, यहाँ होना चाहिए हमारी लाइफ का मकसद। तो यानी जो भी हमारी लाइफ का पर्पस है, मीनिंग है, वो क्या है। डज लाइफ हैव अ पर्पस, उसका कोई मकसद है या नहीं है, ये ऐसे ही है बस हम ऐसे दुनिया में आ गए हैं बाई चांस, तो फिर हमें वापस चले जाना है। ये देखिए, मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रिस्पेक्टिव टू रिलीजन। मैं कोई इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन थॉट्स कि इंसान क्या सोचता है। मेजॉरिटी में बेटा जब लोग होश संभालते हैं तो ये क्वेश्चन के माइंड में आता है कि ये मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और आर पीपल बोर्न गुड और इवल। ये जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या ये बच्चे जब पैदा होते हैं क्या ये फितरतन अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं? आप क्या कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है क्या फितरतन अच्छा होता है या बुरा होता है? क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जी इम्तियाज़, ताहिरा, हाफिज नहीं, गाइड करें हम इसमें, फ़रियाल, अक्सा। आपके ख्याल में जो बच्चे पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपके ख्याल में फितरतन वो अच्छा होता है या बुरा होता है? अगर वो अच्छा है तो क्यों अच्छा है, अगर बुरा है तो क्यों बुरा है? आई एम वेटिंग फॉर दैट, यू मे कमेंट ऑन दैट माई क्वेश्चन। ओके, उसमें ख्याल है कि अच्छा होता है। सर, हर बच्चा दीन इस्लामी की फितरत पे पैदा होता है, दीन इस्लामी की फितरत पे पैदा होता है। ओके, शमेला ख्याल ये है। और क्वेश्चन रिपीट करूँ, मेनली मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बच्चा पैदा होता है वो अच्छा नेचर, उसकी जो फितरत होती है, उसकी जो नेचर होती है, वो अच्छी होती है या बुरी होती है? अच्छा होता है। चलें, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये बात, अच्छा होता है। आप कह रहे हैं, सब मेजोरिटी में कह रहे हैं, तो अच्छा होता होगा। फितरत में सब अच्छे होते हैं। ओके, तो बेसिकली बेटा जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पता है, जिस दुनिया में हम एग्जिस्ट करते हैं और जिन रिलीजन्स को भी हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमें कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूर मिल जाती है, और उसमें मुतमिन भी हो जाते हैं, बाज़ बार मुतमिन नहीं भी होते, बाज़ लोग इसको खुद से सर्च करते रहते हैं। तो बहरहाल कुरान में तो आता है कि जो भी बच्चा दुनिया में पैदा होता है फितरत तस्लीम पे पैदा होता है, और ये उसके माँ बाप है जो उसको अपना जो भी उसका मज़हब और थाट्स होते हैं उसका रंग दे देते हैं। तो अल्लाह सबको चाहता है, अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है, वो तमाम इंसानों से, तमाम मखलूक़ात से। तो बहरहाल वो सबका रब है। डज द यूनिवर्स हैव अ डिज़ाइन और पर्पस? ये, और ये यूनिवर्स है, क्या इसकी कोई हकीकत है, और इसकी हकीकत है क्या है? ये चांद सितारे और ये कहकशाएँ और सियारे और गैलेक्सीज और ये जो हमारा ज़मीन है, और इसके अंदर जो भी मौजूदात हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, रेगिस्तान हैं, और फिर दुनिया के बहुत से मज़ारात हैं, आंधियाँ हैं, तूफ़ान हैं, बिजली कड़कती है, और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है, कितने सारे मज़ारात हो रहे होते हैं। तो ये सब कुछ क्यों है, कैसे हैं, कैसे पैदा हो गई ये चीज़ें? तो इस बारे में इंसान सोचता है जब इंसान इन चीज़ों पर गौर करता है। और ये सारे बेटे जो क्वेश्चन हैं, इनका ताल्लुक ऑन्टोलॉजी से, या हम कह सकते हैं मेटाफिजिक्स के साथ है, जो बेसिकली स्टडी है, स्टडी ऑफ द रियलिटी। ठीक है, हम रियलिटी क्या है इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, एंड होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज एंटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है, ब्रांच है, वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो है, इट इज दिस बेसिकली एड्रेस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड नोइंग। बेसिकली जो हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ नॉलेज, कि हम नॉलेज को जो स्टडी करते हैं उसको बेटा एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसके अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने कुछ बातों में कुछ बातें रिपीट भी की, पहले भी की, अभी भी करूँगा, कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द नॉलेज। ये जो नॉलेज है, क्या इसकी कोई लिमिट्स हैं, ये लिमिटलेस है ये? और व्हाट वेयर डू वी फाइंड द सोर्स ऑफ नॉलेज? जिस सोर्स से बेटा हमारे पास नॉलेज आ रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है, और क्या हम इस पर बिलीव कर सकते हैं, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एंड हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज? और फिर ये नॉलेज पैदा कैसे होता है, एक्वायर कैसे होता है, इसको इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, इसको कैसे जनरेट किया जाता है, और आर देयर वेज ऑफ डिटरमिनिंग द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज? और फिर कौन सा नॉलेज वैलिड होगा और कौन सा नॉलेज जो है ना वो इनवैलिड होगा? इस बारे में जो है हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की।
और जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि मैं कोई बात फिजिक्स के बारे में कहता हूँ, केमिस्ट्री के बारे में कहता हूँ, बायोलॉजी या जोलॉजी के बारे में कहता हूँ, तो क्या वो जो बातें हैं उसको जो है लोग तस्लीम करेंगे। इवन एजुकेशन में कोई बात मैं कहता हूँ, थ्योरी देता हूँ, क्या वो तस्लीम ऐसी तस्लीम कर ली जाएगी। एंड व्हाट इज द ट्रूथ, और फिर उसका उसकी उस नॉलेज की सच्चाई क्या होगी, ट्रूथ ऑफ द नॉलेज, और उसकी सच्चाई को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये कुछ बुनियादी क्वेश्चन हैं, इनको फिलोसफिकल क्वेश्चन कहा जाता है, जिसको फिलोसफी जो है वो, या फिलोसफर जो है, यानी हम सब इंसान जो है इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं और इस बारे में सोचते हैं, और यही वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड को ओपन करते हैं। और हमें यानी इसको इसको एक्सप्लोर करने से, इन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने से, हम फिलोसफिकेशन इस पर करने से हम हमारे अंदर बहुत सारी रीजनिंग, बहुत सारी लॉजिक, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं। Then we see there is a term of zoology, that is another branch of philosophy, that means the study of values. तो ये जो बेटा वैल्यूज हैं, इकदार हैं, कदरें हैं, ये कैसे बनती हैं, और कौन सी कदरें, क्या कदरें हकीकी हैं, क्या कदरें जो हैं वो मुश्किल हैं, क्या आर्जी हैं, क्या इनको चेंज होना चाहिए, क्या वट एवर, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू zoology. And seeking wisdom about the nature of ethical and aesthetic values, they are related to zoology. इसमें हम एथिकल और स्टैटिक दोनों तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं। और अगर हम एथिकल देखें, व्हाट आर द वैल्यूज़ एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। ये जो बेटा वैल्यूज़ हैं, हमें छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए, शफकत करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेकी में दूसरे के काम आना चाहिए। और कुछ वैल्यूज़ मैंने आपको भी टीच की जब ये क्लास शुरू हुई। तो ये वैल्यूज़ क्या वाकई ये वैल्यूज़ ज़रूरी हैं, इनको टीच करना, इनको शेयर करना, इनको गाइड करना, ये ज़रूरी है क्या। और हाउ शुड वी लिव आवर लाइफ्स, एंड जब हम अपनी लाइफ बसर करें तो उसमें किन वैल्यूज़ को हम जो है वो बेटा फोकस करें। एंड व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये भी डिफ्रेंशिएट करें कि हमारे लिए क्या ठीक होगा, क्या ठीक नहीं होगा, क्या प्रोहिबिटेड होगा और क्या अलाउड होगा, किस चीज़ की हमें परमिशन होगी। तो ये चीज़ भी बेटा आपकी ज़ियोलॉजी जो है ये डिटरमाइन करती है। और फिर स्टैटिक के हवाले से कि व्हाट इज़ ब्यूटी, खूबसूरती क्या है। देखिए अल्लाह ताला यानी खूबसूरती के बारे में आपके ख्याल में खूबसूरती सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। जी बेटा, आपके ख्याल में जो खूबसूरती है ये सब्जेक्टिव टर्म है या ऑब्जेक्टिव टर्म है, कि खूबसूरती की ख़ास डेफिनेशन है और बस वही चीज़ खूबसूरत होगी जो उस डेफिनेशन को पूरा करती होगी, कोई ख़ास क्राइटेरिया खूबसूरती का, वही चीज़ खूबसूरत होगी उस क्राइटेरिया को जो है ना मीट करता होगा। आपके ख्याल में क्या है ये। जी क्लास, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपके ख्याल में खूबसूरती को बयान करने का, मेजर करने का, डिटरमाइन करने का क्या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, क्या ये सब्जेक्टिव होती है, हाँ, या इसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है। जो चीज़ क्राइटेरिया मीट करेंगे वही चीज़ खूबसूरत होगी, और जो चीज़ क्राइटेरिया पर नहीं होगी वो चीज़ खूबसूरत नहीं होगी, या हर बंदा अपने तरीके से खूबसूरती को देखता है, परखता है और सोचता है। ओके, शुमेरा ख्याल है कि मेरे के नज़दीक खूबसूरती का कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखें, अगर हम एक बाग में जाते हैं तो उस्मा सही कह रहे हैं, सब्जेक्टिव में भी जुलेखा भी सही कह रही है कि सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये खूबसूरती बेटा हर इंसान के लिए अपनी, मसलन आप, मुझे नहीं पता, आप मुझे इसका आंसर करें कि आपका पसंदीदा फूल कौन सा है, विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर। जी, हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है, ठीक है। फ़िलहाल सब्जेक्टिव है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। आपके ख्याल में जो खूबसूरती है एक फ्लावर की, आपके नज़दीक कौन सा सबसे खूबसूरत फ्लावर है। हो सकती है, मैंने कोई ये फिक्स नहीं किया, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आपको कौन सा फूल ज़्यादा पसंद है। ओके, जैस्मीन, गुलाब, रोज, गुलाब, 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 चमेली, रोज, चमेली, ओके, ओके रोज। तो इसमें यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग एज रोज और गुलाब। तो इसकी क्या वजह है कि व्हाई दिस आंसर इज सो प्रोमिनेंट।
अब इसका मुझे रिप्लाई करें कि आपके ख्याल में मेजॉरिटी को फूल क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या फूल बाकी सब फूलों से ज़्यादा खूबसूरत होता है? क्या गुलाब का फूल बाकी सब फूलों से ज़्यादा खूबसूरत होता है आपके ख्याल में, अगर हम खूबसूरती की इंतहा की बात करें? जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गुलाब जो है ना वो शायद सब फूलों से ज़्यादा खूबसूरत होता है। ओके, अच्छा, बेंजी का ख्याल है कि हर फूल की अपनी खूबसूरती है, चाहे वो रोज़ हो चाहे वो चंदेली हो, ठीक है, ठीक कह रहे हैं बेंजीर, हर फूल की अपनी खूबसूरती, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी में लोग गुलाब को क्यों पसंद करते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। ओके, उसके बेटा साइमा का ये ख्याल है कि उसका कलर अट्रैक्टिव होता है और वो चार्मिंग होता है, ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, इसलिए शायद गुलाब को ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर भी है। ठीक है मुराद अली, तो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह भी हो सकती है, या बाकी चार्मिंग होता है, ठीक है जी, ज़्यादा चार्म है उसके अंदर। ओके, तो ये बेटा आप कह रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है, तो फिर मेजॉरिटी सब्जेक्टिव की तरफ क्यों मूव कर जाती है? यानी हमें मेजॉरिटी के अंदर मैक्सिमम वो इंक्लिनेशन क्यों नजर आता है? अगर सब्जेक्टिविटी हो तो फिर चीज़ें तो बहुत डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे मेरे पास आए हैं इस क्लास में, सेशन में, इस वर्कशॉप में, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फील्ड्स, लैंग्वेज है, साइंस है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है। तो आप लोग सब फील्ड से मेरे पास आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारे फूल हैं और वो मुख्तलिफ कलर्स के फूल हैं। इवन अगर आप बाग में बेटा सारे गुलाब भी लगा देंगे तो वो बाग इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना वो बाग अट्रैक्टिव होगा जहाँ पे वो क्यारियाँ अट्रैक्टिव होंगी, जहाँ पे कई रंगों के और कई नस्लों के फूल लगे हों, वो ज़्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। ये मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, ये मेरी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिविटी है मेरा, ये तो सब्जेक्टिव नहीं है इसमें आंसर कि लाजमी ऐसा हो। ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि लाजमी वैसा हो, उसमें क्राइटेरिया होता है। मैं जनरल एक डिस्कशन कर रहा हूँ, जस्ट एक बात कर रहा हूँ। ओके, how do we judge what we see and touch and hear? ये अभी वो चीज़ें हमने कोशिश की इस क्वेश्चन को परखने की कि हम क्यों एक ही फूल को सब लोग जज कर रहे हैं यही खूबसूरत है, उसी को देखना चाहते हैं, उसी को टच करना चाहते हैं, उसी के बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वही चीज़ सबको पसंद आए, जहाँ वो हर कोई उसी को एडमायर करें, ये इंसान की फितरत के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो एनी हाउ आगे चलते हैं। तो ज़ियालॉजी बेटा इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज है और आपकी स्टैटिक्स को डील करती है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा मेटाफिजिक्स में तो उसकी डिटेल्स हैं मेटाफिजिक्स के हवाले से। Metaphysics, as you see, the term metaphysics means comprehensive thinking about the nature of things, कि जो चीज़ें नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में हम कम्प्रीहेंसिवली हम उसको स्टडी करते हैं, यानी ओवरऑल स्टडी करते हैं। इट मीन यूज स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रियलिटी। हमें जैसे कहा कि इसको ओंटोलॉजी भी कहा जाता है, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस कहा जाता है। और इसकी फर्दर कुछ उन्होंने टाइप्स बता दी हैं। जो मेटाफिजिक्स है इसको हम स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और जो ओंटोलॉजी है उसको स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी के नाम देते हैं। तो एनी हाउ इसमें कुछ फर्दर चार उन्होंने फिलोसफी दी हैं मेटाफिजिक्स के वाले से। यानी चार तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एक तो बेटा है कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रिएशन, कि हर चीज़ कैसे पैदा हो गई, ये आसमान, ये तारे, ये कैसे पैदा हो गए, ये ज़मीन, ये सूरज, ये यानी चांद, ये चीज़ें कैसे पैदा हो गई, पहाड़ कैसे पैदा हो गए, दरिया समुद्र कैसे पैदा हो गए। तो इट इज़ रिलेटेड टू कॉस्मोलॉजी, सॉरी कॉस्मोगोनी, कॉस्मोगोनी। तो इसको बेटा कॉस्मोगोनी का नाम दिया गया, और स्टडी ऑफ क्रिएशन। और दूसरी बेटा कॉस्मोलॉजी है, स्टडी ऑफ कॉस्मोस, यानी फल्कियात जो आपका है, इसको जो हम स्टडी करते हैं, जो सितारे हैं, सियारे हैं, और इसमें जितनी भी हमारी गैलेक्सीज हैं, जब इनको हम स्टडी करते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी। और ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। असल में जो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, जैसे हम कहते हैं बेटा बीइंग मुस्लिम के अल्लाह ही सब मौजूदात के पीछे, उसकी क्रिएशन के पीछे अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है, अल्लाह ताला ने ही सब चीज़ें बनाई हैं। और कुछ लोग बेटा इसको नेचर का नाम देते हैं, कुछ लोग एथिस्ट हैं, वो इसको चूँकि तस्लीम नहीं करते अल्लाह की एग्जिस्टेंस को, तो इसलिए वो अल्लाह का इनकार भी करते हैं और इस चीज़ को मान तस्लीम भी नहीं करते। और कुछ लोग जो हैं वो कई खुदाओं को मानते हैं, कई देवताओं देवतियों को मानते हैं। कोई ये कहता है कि ज़मीन को जो है वो किसी भैंस के सर पे
जो उसके क्या होते हैं भैंस का, हाँ, सींग होते हैं उसके ऊपर रखा हुआ है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आग की प्रस्तुत कर रहा है, कोई समुद्र की प्रस्तुत कर रहा है, कोई जो है वो आबशार की प्रस्तुत कर रहा है, कोई पहाड़ों की प्रस्तुत कर रहा है। तो ये इंसान जो है वो अल्टीमेट रियलिटी को फाइंड करने के चक्कर में या उसको फाइंड करते हुए मैंने बताया कि गुमराह भी हो जाता है और वो अल्लाह के नज़दीक भी चला जाता है। ठीक है। और फिर बेटा हमारे पास हम देख सकते हैं फिलोसफी ऑफ सेल्फ है, ये भी एक फिलोसफी है, फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ, कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, एंड जिससे हमने बुनियादी क्वेश्चंस किए थे अपने बारे में। तो इसके बारे में अब सारी बात, इसमें बहुत सारे तजाद आइडियाज़ हैं। जैसे हिंदू ये समझते हैं कि इंसान जो है उसकी जो तख्लीक है वो चार चार ग्रोहों में होती है, जो बर्मन है, शूदर हैं और रेश हैं, और फिर वो जो क्या कहते हैं उसको खतरी हैं, या खश्ती क्या, ये चार उनके कॉस्ट हैं। वो कहते हैं कि जो बर्मा के सर से पैदा होते हैं बर्मन होते हैं, और जो पाँव से पैदा होते हैं वो शूदर होते हैं, और जो पेड़ से पैदा होते हैं वो हल चलाते हैं, उनको कुश्ती शब्द कहते हैं, या क्या कहते हैं, और ऐसे जो बाजुओं से पैदा होते हैं वो जंगे लड़ते हैं, वो सोल्जर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। तो उनका ये कंसेप्ट है। ऐसे बेटा जो मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उसके अंदर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो मतलब जो यहूदी हैं, अब वो यहूदी जो हैं अच्छा, जो यहूदी हैं वो अपने आप को अल्फा वाला समझते हैं, और वो अपने अलावा किसी को भी राइट पे नहीं समझते यहूदी जो हैं। और वो एक ऐसी कौम है, वो बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गरूर है, तकब्बुर है, और वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनके अपने ज़ाहिम है, उनके अंदर बहुत यूनिटी है। और बेटा जो क्रिश्चियनिटी है वो कई ग्रुप्स में वो डिवाइड हैं, और उनके अपने 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 ख्याल इंसान क्रिएशन के बारे में, और कोई दुनिया से जन्नत से यहाँ तक आने के उनके अपनी फिलॉसफीज हैं, अपने उनके मज़हब में गाइडेंस लिखी हुई है, अगर आप उनके तरात वगैरह पढ़ते हैं। तो ऐसे कुरान है, कुरान में हमें और तरह का अल्लाह ताला ने हमें हदायत दी है कि इंसान कैसे जन्नत से निकला है और कैसे वो हमारे तक पहुंचा है। तो कुरान भी अल्टीमेटली इंसान को उसके सब के बारे में जो है ना वो गाइड करने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। जी बेटा आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके, थैंक यू फरियाल, शहजाद, साइमा। तो बेटा कुरान जो है वो हमें और तरह से गाइड करता है। कुरान की अपनी स्टोरी है इंसान की दुनिया में आने की और उसकी सर को समझने की, और उसको मकसद हयात समझाने की और समझने की। तो एनी हाउ बेटा बात ये है कि हर इंसान कोशिश कर रहा है कि अपनी ज़ात को पहचानने की, और अपना जो ज़ात है उसका बाकी जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ क्या ताल्लुक है उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है अपने तौर पे। और इसी को बेटा मेटाफिजिक्स का नाम दिया जाता है, स्टडी ऑफ सेल्फ का नाम दिया जाता है, कि हम खुद फिलोसफिकल एनालिसिस करते हैं सेल्फ का, फिलोसफी ऑफ सेल्फ के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखें तो एपिस्टेमोलॉजी जो है इसके बारे में हमने बात की थी डिटेल में, कि इट्स अ काइंड ऑफ branch of philosophy that studies concept of knowledge. Epistemology basically concept of knowledge के बारे में बात करती है, सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करती है कि कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज एक्वायर किया जाता है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा होगा, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, किस नॉलेज को हम तस्लीम करेंगे, क्यों इसको वैलिड समझा जाए, और इसकी लिमिट क्या है नॉलेज की, ये, और फिर नेचर ऑफ नॉलेज क्या होगा, ये किस तरह का नॉलेज होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉस्मोलॉजी गाइड करती है। फिर एक्सोलॉजी जो है स्टडी ऑफ वैल्यूज हैं एंड एस्थेटिक्स हैं, और इसमें भी जो इट हैज़ बीन ड्राइव फॉलोइंग थ्री ब्रांचेस, एथिक्स हैं और फिर एस्थेटिक्स हैं, और इसमें एथिक्स में बेटा क्राइटेरिया फॉर राइट एंड गुड है, और फिर इसमें एस्थेटिक्स हैं जो ब्यूटी को और नेचर को एडमायर करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा उसको डिटरमाइन करता है। और फर्दर जो है हमारे पास जो है रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो ये मैंने पहले आपसे कहा कि इनका फिलॉसफी का हर फील्ड से गहरा ताल्लुक होता है, और ख़ासतौर पर एजुकेशन में तो ज़्यादा गहरा ताल्लुक है क्योंकि इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आती है। और हमारे पास लिस्ट ऑफ फिलॉसफीज हैं जिनको हम एजुकेशन फिलॉसफी कहते हैं। और फिलॉसफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू एजुकेशन, especially providing theory of knowledge of education or for education.
कि जो नॉलेज है वो किस नॉलेज को हम डिलीवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टॉलिस 1988, it has three dimension: personal dimension, public dimension and professional dimension. बेटा जो पर्सनल डिमेंशन है, हैविंग अ सेट ऑफ पर्सनल बिलीव्स एंड व्हाट इज गुड एंड राइट, यानी जो भी इंसान अपने तौर पर सोचता है कि क्या ठीक है, क्या दुरुस्त है, क्या वर्थवाइल है, उसके बारे में उसके अपने हर किसी के अपने बिलीव्स हैं, उसको पर्सनल डिमेंशन कहा जाता है। और पब्लिक डिमेंशन में ये है कि दूसरों को गाइड डायरेक्शन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैनी पीपल, कि ओवरऑल कम्युनिटी को या पब्लिक को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और फिर प्रोफेशनल डिमेंशन है जो को हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जो कि हम यहाँ पे पेडागोजी के हवाले से बात कर रहे हैं और उसकी इम्प्लीकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। ये तीनों डिमेंशन जो है इसमें हमें इस चीज़ को हम देख सकते हैं, फिलॉसफी इम्प्लीकेशन की, पर्सनल भी, पब्लिक भी और प्रोफेशनल भी। फर्दर फिर हम देखते हैं कि फिलॉसफी जो है एंड एजुकेशन क्लोजली इंटररिलेटेड इन द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज नॉन एज फिलॉसफी। जी हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं फिलॉसफी को। And according to Ross, philosophy and education are like the two sides of the same coin. This indicates that the fact that the plant of education draws its nourishment from the soil of philosophy. तो जैसे पौधा जो है वो ज़मीन से अपनी नरिशमेंट लेता है, तो वैसे जो फिलॉसफी जो एजुकेशन है इसकी जो बेटा नरिशमेंट है वो सारी जो उसकी ज़मीन है फिलॉसफी को इससे मिलती है, इससे ये प्लांट दरख्त बनता है, फलता फूलता है, इसके फल निकलता है, ये सारी ब्रांचेस की होती हैं। सो फिलॉसफी आंसर्स ऑल द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन। तो एक तो ये है कि ये सारे क्वेश्चंस को करता है। फिर हम फर्दर देख सकते हैं कि इसका जो इंटरडिपेंडेंसी है इनके आपस में, और ये आपस में कैसे लिंक करते हैं। Philosophy is a theory and education is practical in nature. Philosophy बेटा theoretical perspective देता है, जबकि एजुकेशन वही चीज़ प्रैक्टिस के तौर पर इसको सरंजाम देते हैं और उसको एक्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। Philosophy provides purpose of aim, while education which makes in practical. Education is dynamic side of the philosophy and application fundamental principle of philosophy. और उन्हीं एम्स और गोल्स को हम एजुकेशन के थ्रू बेटा अचीव करते हैं। Philosophy formulates the method, it gives deals values and principles, while education called applied philosophy. Education process and its work out those ideals, values and principles that are guided by the philosophy. And education renews and rebuilds the social structure of the pattern of philosophical ideas or ideals. तो जो हमें हमारे आइडियल्स बताते हैं उसको रीबिल्ड करने के लिए एजुकेशन गाइड करती है। इट इज़ द एक्टिव रिस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ लाइफ। तो इससे हमें ज़िंदगी में जो हमारे आइडियल्स हैं उनको समझने में कोशिश करते हैं, उसमें कुछ हमें मौका मिलता है। और फर्दर हम देख सकते हैं रोल ऑफ फिलॉसफी एजुकेशन। बोथ फिलॉसफी एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंट एंड ऑल ग्रेट फिलोसफर्स हैव एम्प्लॉयड एजुकेशन ट्रांसलेट देयर फिलोसफिकल आइडियाज इनटू प्रैक्टिस। और जितने भी दुनिया में फिलोसफर गुजरे हैं उन्होंने अपने आइडियाज़ को एजुकेशन के अंदर ही एम्प्लॉय करने की कोशिश की है, इस्तेमाल करने की कोशिश की है। एजुकेशन डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी, और फिलोसफी की ये बड़ी एक डायनामिक साइड है जिसको शायद दुनिया तस्लीम करती है। एजुकेशन इज अ मीन्स टू अचीव द गोल, और ये जो एम्स हैं, गोल्स हैं जो डिफाइन करती है फिलोसफी, इसको अचीव बिना फिलोसफी के थ्रू भी एजुकेशन के थ्रू करता है, टीचर करता है, स्कूल करता है, कि कम्युनिटी करती है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमें फिलोसफी गाइड करती है, लेकिन अचीव हम लोग करते हैं। और अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस लाइक फिलोसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, कि आपके जो एम ऑफ एजुकेशन है वो ड्राइव किए जाते हैं थ्रू फिलोसफी। उसको हम फर्दर देखेंगे भी इंशाल्लाह, जब हम डिफरेंट फिलोसफीज के एम्स को स्टडी करेंगे। एंड फिलोसफी एंड करिकुलम, और जो मेरा करिकुलम है जो निसाब होता है उसको भी ड्राइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिलोसफी। एंड फिलोसफी एंड टेक्स्ट बुक, जो मेरा टेक्स्ट बुक राइट अप होता है वो भी एक खास अंडर द फिलोसफी गाइडेंस होता है, ये गाइडलाइन होता है। फिलोसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी मैंने फिर कहा है जिस तरह हमारी फिलोसफी होगी वैसे हम मेथोडोलॉजी डिवाइस करते हैं। फिलोसफी एंड डिसिप्लिन, हमें फिलोसफी गाइड करती है कि हमारा डिसिप्लिन कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा या स्ट्रिक्ट होगा या ओवर स्ट्रिक्ट होगा, या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ओपननेस होगी, क्या होगा। फिलोसफी एंड टीचर, फिर टीचर का क्या रोल होगा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम। और फिलोसफी एंड एवेल्यूएशन, और फिर असेसमेंट एवेल्यूएशन कैसे करते हैं, एग्जाम क्यों लेते हैं, एग्जाम कैसा होना चाहिए, ये सारा बेटा हमें फिलोसफी गाइड करती है। और फर्दर हम देख सकते हैं जो जनरल फिलोसफीज हैं उसमें हमारे पास आइडियलिज्म है जिसका मैंने पहले तस्करा किया। इसका ताल्लुक बेसिकली है आपके जो प्लेटो है, उसने सोक्रेटिस ने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था, लेकिन इसके बारे में कुछ लिख नहीं सका, बल्कि उसके सारा कुछ ज़्यादातर जो नॉलेज था
वो डायलॉग्स थे, और उस डायलॉग को फिर प्लेटो ने लिखा उसके मरने के बाद, और उसमें काफ़ी सारी रिफ्लेक्शन उसने दी अपने टीचर की, और फिर उसने आइडियलिज्म की बुनियाद रखी है। शायद उसमें उन डायलॉग्स को उसने यूज़ भी किया हो। तो उसका जो प्रोपोनेंट जो है बेटा प्लेटो है, और फिर स्क्रात जो है रियलिज्म, ऐसे बेटा जो प्रैग्मेटिज्म है, अमेरिकन फिलॉसफी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, कि जो चीज़ हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, उसमें जॉन डेवी है प्रैग्मेटिज्म में, और बाकी लोग हैं ऐसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो ये जनरल फिलॉसफीज हैं। इसमें सबसे पहले जो बेटा फिलॉसफी वो आइडियलिज्म की है, और आइडियलिज्म में हम कह सकते हैं फादर ऑफ आइडियलिज्म वाज अ ग्रेट ग्रीस फिलोसफर, जो कि ग्रीक फिलोसफर था बेसिकली, जिसको हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। और एंड ही इज आल्सो नोन एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट दैट टाइम, एंड हिज फेमस बुक वाज द रिपब्लिक। उसने किताब तहरीर की थी जिसको रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। And ideal is a reflection of ideas of mind, because mind is absolute reality. असल में बेटा इसका ख्याल ये है कि जो आइडियाज हैं ये रियलिटी है, क्योंकि ये रियलिटी जो हमारे माइंड के अंदर एग्जिस्ट करती है, चीज़ें अक्सर एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमें नज़र जरूर आती हैं, हम यूज़ भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो उसके रिलेटेड हमारे कंसेप्ट हैं, आइडियाज़ हैं जो हमारे माइंड के अंदर हैं, वही असल हकीकत है, और उसी तक हम महदूद रहते हैं। बाकी ये चीज़ें मायने नहीं रखती है, आपकी सोच ज़्यादा मायने रखती है, आपका माइंड ज़्यादा मायने रखता है, आपकी अपनी शख्सियत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये बातें प्लेटो ने की हैं, प्लेटो ये बात समझते हैं। और वर्ल्ड इज इंटरनल एंड परमानेंट एंड यूनिवर्सल, और ये जो वर्ल्ड है ये हमेशा के लिए है, और यही सब कुछ है, और यही यूनिवर्सल सबके लिए यही है। और द साउल इज द फुली फॉर्म प्रायर टू बर्थ एंड इज परफेक्ट। और बेटा जो साउल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नरिशमेंट, उसकी जो डेवलपमेंट है बड़ी ज़रूरी है। और इसलिए आपकी जो साउल है ये आपकी पैदाइश से पहले ही बन चुकी होती है, और ये हर लिहाज से मुकम्मल है। इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि साउल जिस बॉडी में आती है उसको फिर वो बॉडी उसको ट्रेन करती है कि कैसे हाउ टू लिव एंड हाउ टू बिहेव। तो ये हमें साउल को गाइड किया जाता है। देन हम देख सकते हैं कि जो फादर ऑफ आइडियलिज्म है प्लेटो, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट, एंड और इसका एक स्टूडेंट था प्लेटो का जिसको हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। और उसने रियलिज्म की बुनियाद रखी, उसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, फॉर्मुलेट किया, और इसे प्रपोज किया रियलिज्म को। और उसके मुताबिक, प्लेटो के मुताबिक, द अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस वक्त आपको अपने कमरे में नजर आ रहे हैं या जहाँ बैठे हुए हैं, वो असल चीज़ें हैं, रियलिटी है। फोकस इज ऑन द बॉडी एंड बिलीव इन लॉजिक, रीजनिंग एंड रैशनल थॉट्स। और उसका वो यानी जो जितनी बड़े साइंटिफिक नॉलेज है वो काफ़ी हद तक रियलिज्म बेटा उसको ड्राइव करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को। तो इसलिए वो ज़्यादा बेस करता है आपके लॉजिक पे, रीजनिंग पे, रैशनल पे। द रियलिस्टिक करिकुलम एम्फसाइजेस द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, पार्टिकुलरली साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल साइंसेज। तो आपको जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है इसको बेटा रियलिज्म ज़्यादा एडवोकेट करता है, इसकी ज़्यादा फेवर में है, क्योंकि ये जितना भी आपका फिजिक्स है, जितना भी आपका मैथमेटिक्स है, ये सारा आपको फिजिकल वर्ल्ड को वेयर करता है या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो वो इनके ख्याल में जो रियलिस्ट हैं इनके ख्याल में ये दुनिया हकीकी है, जबकि जो आइडियलिस्ट के ख्याल में ये दुनिया हकीकी नहीं है। फिर बेटा चौथी तीसरी जो फिलॉसफी आती है दैट इज द प्रैग्मेटिज्म। और जो प्रैग्मेटिस्ट है बेटा ये बेसिकली अमेरिकन फिलॉसफी है, लेटेस्ट फिलॉसफी है 19th सेंचुरी की। और इसमें जॉन डेवी है, चार्ल्स पियर्स है, और इसका जो टीचिंग मेथड है बेस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, और लर्निंग बाय डूइंग पे, प्रोजेक्ट्स पे, स्टूडेंट वर्क ग्रुप में। तो ये जो प्रैग्मेटिस्ट हैं ये बेटा एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, और इंस्ट्रूमेंटलिज्म की बात करते हैं, ऑन हैंड ट्रेनिंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं कि आपकी जो लर्निंग है दैट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। और ये लोग इसमें बेटा एग्जिस्ट करते हैं, चार्ल्स वो। और फर्दर बेटा आपका जो फिलॉसफी है दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। और इसके अंदर जो लोग आते हैं उसका नाम जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट मैंने लिखा हुआ। तो लेकिन जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है उसमें उनके नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने लाइफ यानी एग्जिस्ट करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। एटलीस्ट आपको किस तरह का नॉलेज, किस तरह की स्किल चाहिए जिससे आप सोशली फिट होते हैं और आप सोशली सर्व कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, एक अच्छे सोसाइटी के रूप में बन के उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट दे सकते हैं, उनको
सोशली बेनिफिट दे सकते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट दे सकते हैं, और तो ये लोग इस चीज़ पर फोकस करते हैं। तो इनके ख्याल में लाइफ सेंटर फिलॉसफी है, लाइफ की एग्जिस्टेंस जरूरी है, इंसान की एग्जिस्टेंस जरूरी है। एंड दे से दैट रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड लाइज विद द इंडिविजुअल बिकॉज एवरी पर्सन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। उनके ख्याल में जो रियलिटी का जो टॉपिक है ये सब्जेक्टिव टॉपिक है। ये कहना कि दुनिया की सारी चीज़ें हर इंसान के लिए जैसी है बेटा ऐसा नहीं है। उनके ख्याल में हर इंसान की अपनी लाइफ वर्ल्ड है, हर इंसान का अपना वे ऑफ थिंकिंग या थॉट्स है, हर बंदा अपने तौर पर एक्सप्लोर करता है। तो ये इसलिए वो वेरी कर सकते हैं। देन फोकस ऑन द फ्रीडम एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑथेंटिक इंडिविजुअल्स। तो ये फ्रीडम देते हैं बच्चों को भी, बड़ों को भी। एंड एग्जिस्टेंस कम बिफोर एंड एनी डेफिनेशन ऑफ व्हाट एंड फिर इनके लिए वैल्यूज भी मायने नहीं रखती, बल्कि वही वैल्यूज वो इनको जरूर समझेंगे जो आपकी ज़माने की ज़रूरियात को सर्व करती हो। और इंसान की ज़िंदगी जो है, उसका जो वजूद है वो सबसे पहले है, उसके बाद बाकी सारी बातें आती हैं, उसके बाद मोरालिटी आती है, बाकी सारी बातें आती हैं। बिकॉज देयर इज नथिंग बिफोर द बर्थ एंड विल बी नथिंग आफ्टर दैट। और ये लोग जिंदगी बाद जो मर्द कहते हैं, बाद मौत कहते हैं, उस पर भी यकीन नहीं करते। इसलिए कहते हैं इस जिंदगी से पहले भी कोई जिंदगी नहीं थी और इस जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी नहीं होगी। तो मोस्टली ये जो लोग हैं ये एथिस्ट हैं, अल्लाह पे भी यकीन नहीं करते हैं। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट, यस क्लासरूम शुड बी मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। आप जो क्लासरूम के अंदर किस तरह के इन्वायरमेंट होगी, किस तरह के वेट्स होंगे, किस तरह का सामान होगा, कुर्सियाँ टेबल मेज होंगे, ये भी आपकी हर बंदे की अपनी चॉइस है, वो कैसे करना चाहता है और इसमें जो जरूरी लगता है वो करे। स्टार्ट विद स्टूडेंट रादर देन करिकुलम कंटेंट। और स्टूडेंट सेंट्रिक फिलॉसफी और एग्जिस्टेंशियलिज्म, और वो ये कि ख्याल में करिकुलम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट की जो स्किल्स हैं डेवलपमेंट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बेटा बेसिकली जो बेसिक फिलॉसफी से वो हैं। और नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू sort of education philosophies, but before proceeding further, if you have any questions, you may write in comments. Okay, discuss so many examples and so many, I've tried my best to explain all the topics. तो आप बेटा फिर भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं।